हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज +2 में आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन है उसमें मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर 6 जो चल रहा है फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास +2। इन दिस सेशन टुडे, आज ये इसमें 16 लेक्चर है, 16वां लेक्चर है। 15 लेक्चर हो गए हैं इनमें। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हो गया, 6 भी हो गया कंप्लीट। लास्ट है आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मैक्सिमा पर। तो मैक्सिमा पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मैक्सिमा इंपोर्टेंट है फॉर दिस ईयर। 5 मार्क्स क्वेश्चन। yesterday also we have done 5 marks question session and today also. So now this question number 1, most important for the 5 marks for board exam 2026 mathematics class +2. Okay, now class +2 में first, a window is in the form of a rectangle. ये फिगर बनाई हमने गिवन में। विंडो है कोई ABCD, रेक्टेंगल है एंड सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग इस पे सरमाउंटेड है। तो ये DC is the diameter of the semicircle and OC is the radius of the semicircle. Point O is the center of the DC. Then let length and breadth be 2x and y रेस्पेक्टिवली। लेंथ हमने मान लिया 2x है फिगर, एंड ब्रेथ हमने मान लिया y मीटर है, मीटर्स। तो लेंथ एंड ब्रेथ आपकी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अब गिवन थिंग है टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। तो टोटल पेरीमीटर हमें बनाना होगा गिवन थिंग से पहले। क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा इसका, टोटल ओपनिंग, सब पूरी विंडो को ओपन कर दिया जाए। तो AB प्लस BC प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस DA। तो क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पेरीमीटर अब टोटल पेरीमीटर कितना बन गया, अकॉर्डिंग टू दिस लेट 2x इज द लेंथ, ब्रेथ इज y। तो 2x प्लस y प्लस सेमी सर्कल प्लस दिस AD, यानी आपका क्या होगा, बाहरों बाहर चलना है हमें। तो लेंथ एक बार ऐड होगी यानी 2x प्लस y दिस प्लस y दिस, दोनों साइड की 2y एंड प्लस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का पाई आर। आर कितना बन गया, x, बिकॉज दिस इज 2x AB, DC also 2x
then OC is the half of the diameter. Diameter is 2x, then radius will be x. So this is given equal 10. ये given है 10. Okay? And what we have to do? Find the dimensions. Dimensions means ये जो हमने let किया है, length, breadth. We have to find dimensions of the window to admit maximum light. ये main thing, maximum light. Light means maximum light means opening in this तो area. Area के through ही तो आएगी light. So total area. So this we have to take maximum area. So area is the main function which we have to maximize to get the length and breadth for the maximum area. तो area is equal to rectangle का area, length into breadth, 2x into breadth is y, rectangle area plus area of semicircle, pi r square का half, तो pi x square half of this. It is the area of the semicircle. Okay? Then this area is your main function. Let it is A. This implies let this area is A. And in one variable we have to take from here equation number 1. It is given from given. We have to make one variable in this main function area. X and y, two variables are there. So we have to put the value of y. So value of y from the first, okay, from first equation, value of y, what will be there? 10 minus 2x minus pi x, 10 minus pi x minus 2x, दोनों टर्म उधर चली गई, डिवाइड बाई 2. दिस इज योर y. तो पुट दिस y, okay, here to use here this y value from 2, so use 2 here, use 2, substitute the value of y, then a is equal to 2x into y. Y means 10 minus pi x minus 2x divided by 2. This is your y, and plus pi x square by 2. This is your area function in x variable, in variable x. Okay, this is function. Now differentiate this with respect to x. Okay, this two cancel. Okay, differentiate this 10x, differentiate, यानी आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विद रेस्पेक्ट टू x, dA बाई dx. तो x इंटू 10, 10x, डिफ्रेंशिएट 10 माइनस पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 and 2 2 जा 4 x plus this derivative. Okay, this derivative 2 pi x upon 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, then pi x सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, डेरिवेटिव pi upon 2 कांस्टेंट एंड 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, then pi x. नाउ सिंप्लीफाई ये pi x टर्म, तो then we can simplify
तो दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव a dash is equal to 10 माइनस 2 पाई एक्स प्लस 1 पाई एक्स, तो माइनस पाई एक्स माइनस के 2 है प्लस के 1 है, तो माइनस 1 पाई एक्स एंड माइनस 4x। ओके, क्लियर। तो अब इसको क्या हो गया, यहां से सॉल्व किया हमने, इसको डेरिवेटिव आ गया, सॉल्व से 0 इक्वल टू 0। ये मेथड है आपका टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो अब x x 1 साइड ले लो, tan 1 साइड ले लो एंड x कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, x कॉमन एंड उस साइड चले गए, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड देन x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। क्लियर दिस? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्रिटिकल पॉइंट after putting the first derivative equal to 0, solving and then x value this. So this value of x used for the second derivative, so that is negative because maxima. So area double derivative a double dash means d2a by dx square equal to इसका डेरिवेटिव 0 पुट करने से ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारी। ओके, इसका डेरिवेटिव अगेन, तो 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई माइनस 4x का डेरिवेटिव 4। सो दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव लेस देन 0। सो ये नेगेटिव है, माइनस पाई माइनस 4। सो एट x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस x, 4 प्लस पाई, सॉरी, this at x is equal to this, area is maximum, area is मैक्सिमम। तो हमें मैक्सिमम ही प्रूव करना था कि मैक्सिमम एरिया पर डायमेंशंस फाइंड करिए। तो ये मेथड हमारा क्लियर हो गया कि डायमेंशन में x आया हमारा, तो लेंथ 2x है। सो लेंथ इज इक्वल टू, सो लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 10 2 जा 20, 2x is the length, 20 upon 4 plus x. This is our 4 plus pi, sorry, again this wrong written. Oh, 4 plus pi. This is length. Length हो गया, breadth, breadth is equal to y, y, और y इक्वल टू, यहां पुट कर दो इक्वेशन 2 में, 10 माइनस पाई एक्स, तो 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, तो माइनस x कॉमन ले लो, वैल्यू भर देंगे, माइनस x कॉमन, देन पाई प्लस 2। ओके, दिस is your y upon 2.
दिस इज योर y। तो हमने यहां y पुट किया था, ध्यान दे, 2x इंटू वाई, तो दिस अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है, प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस सिंप्लीफाई, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, तो 10 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 10 माइनस एक्स इंटू दैट, तो 10 माइनस ब्रैकेट एक्स इंटू दैट, तो एक्स कितना हमारा, एक्स, नॉट 2x, ओनली एक्स है यहां कॉमन, तो एक्स की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ओके बेटा, 10, ये x की वैल्यू पुट की 10 अपॉन 4 प्लस पाई इंटू x इंटू पाई प्लस 2, x इंटू पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 2, y वैल्यू डिवाइड बाई 2। ओके, क्लियर? नाउ y वैल्यू सिंप्लीफाई फॉरवर्ड हियर। ओके, क्लियर? सो y इज इक्वल टू, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू सॉल्विंग दिस, ये 2 डिवाइड किसके हैं, फुल के डिवाइड बाई 2 है, जो हमने y लिया है, y हमारा कहाँ है, y ये 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2, तो होल डिवाइड बाई 2 है ये। तो अब ऊपर सिंप्लीफाई किया तो 10 माइनस मल्टीप्लाई किया 10 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, टेन पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये हो गया माइनस 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अब माइनस की मल्टीप्लाई अब इसमें होगी प्लस 2 में, तो माइनस 20 प्लस पाई प्लस 2 में, तो माइनस 10 पाई ध्यान से करेंगे ये मल्टीप्लाई, पहले क्या में करी पाई में हो गई इसकी मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस 2 में होगी, तो माइनस 20 अपॉन 4 प्लस पाई, होल डिवाइड बाई 2, अंडरस्टैंड? देन दिस 2 से 10 एल्शियम 10 के साथ ले लो। ओके, तो क्या बना 4 प्लस पाई एल्शियम, न्यूमरेटर में, तो 10 40 प्लस 10 पाई, ध्यान दे मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस पाई इंटू 10, तो 40 प्लस 10 पाई, क्लियर, माइनस 10 पाई, तो 10 पाई के डिनोमिनेटर में सेम है, एंड माइनस 20, ये न्यूमरेटर बना, एंड डिवाइड बाई 2, तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, देन दिस सिंप्लीफाई, दिस विल बी इक्वल
40 if 10 pi positive negative cancel, 40 minus 20, then 20 upon 2 into 4 plus pi. This is equal to 2 से 20 का कैंसिल होकर 10 upon 4 plus pi meter. This is your breadth, this is your length meter. Okay, so 20 upon 4 plus pi meter is the length and 10 upon 4 plus pi meter is the breadth. And अगर आप देखो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल x की वैल्यू होगी, ओके, तो x विल बी 10 अपॉन 4 प्लस पाई. ओके, डन. So this is your solution of this question. Be careful, important question. Next question. हाँ, yes बेटा. Next question is question number 2. Very important for this year. This a point on the hypotenuse. बहुत टाइम एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया होगा. A point on the hypotenuse of a triangle. Hypotenuse of a triangle. It means it is right triangle. On the hypotenuse एक point है. Let this is a point P on the hypotenuse. This point P. Okay. At a distance A and B from the sides. साइड बी सी से डिस्टेंस ए है एंड साइड ए बी से डिस्टेंस बी है. हमने मान लिया दिया हुआ. तो लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इन फिगर, ठीक है, इन फिगर व्हाट इज देयर, हमने बनाया क्लियर बता. इन फिगर जो ए डिस्टेंस है वो आपका बीसी साइड से है. इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी hypotenuse of the triangle so that the minimum length of the hypotenuse, minimum length of hypotenuse यानी AC. तो hypotenuse हमें एक मेन फंक्शन बनाना है, इसका लेंथ AC. hypotenuse क्या है? हाइपोटेनियस यहाँ AC. फिगर हमारे सामने हाइपोटेनियस AC. लेट रिप्रेजेंटेड बाय hypotenuse represented by H. Hypotenuse that is AC. ठीक है, ये क्या होगा? AC PC प्लस AP. This point is A and this B, this C. राइट ट्रायंगल दिस. ठीक है, इन फिगर, ये फिगर बना दी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, अब फिगर के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया ये मेन फंक्शन. तो पीसी क्या करेगा? लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा. क्लियर? ये कर लिया. तो इसमें हमें हाइपोटेनस निकालना है और अपोजिट साइड दे रखी है. तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा. तो अपोजिट साइड पीसी विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड पीसी हाइपोटेनियस. यहां देखिए आप, साइन थीटा यहां लिख दिया जाए
ऑपोजिट साइड है ए अपॉन हाइपोटेनियस है पी सी, तो पी सी की वैल्यू क्या बनी, इधर आएगा, तो पी सी इक्वल साइन थीटा डिवाइड में जाएगा ए अपॉन साइन थीटा। क्लियर? ए अपॉन साइन थीटा, तो दिस इज ए अपॉन साइन थीटा, यहां पुट कर दिया। क्लियर? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू दैट, ओके। प्लस AP सिमिलर इन दिस राइट ट्रायंगल, ओके। इसमें जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा वाई, corresponding एंगल, ओके। ये two are the parallel lines, then these are parallel line, this is transversal line, then these corresponding angle, so equal होंगे। So here which side given, adjacent side, then here cos theta, so this adjacent side upon hypotenuse cos theta, तो hypotenuse is equal to b upon cos theta, okay। clear? clear? okay, now we have to simplify and take derivative of this, तो simplify this, तो दिस फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज वेरिएबल, ओके। तो डी एच अपॉन डी थीटा, ओके। देन 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, ए कांस्टेंट, ए इंटू कोसेक थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, एंड सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, दिस प्लस b इंटू सेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा इज सेक थीटा, तो डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, अब कॉमन है कुछ नहीं है, बट साइन कोस में ले लो क्वेश्चन को, सो माइनस ए कोसेक थीटा इज साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा बन गया कोसेक थीटा, एंड कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ओके। दिस प्लस बी सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा एंड टेन थीटा साइन अपॉन कोस, तो बी साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इंपोर्टेंट थिंग, डेरिवेटिव आपका हो गया, सिंप्लीफाई करना है,
तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एलसीएम लेकर। हाउ कैन फाइंड द वैल्यू? ठीक है भाई, इसको जीरो पुट करना है, डी एच अपॉन डी थीटा। सिंप्लीफाई कैसे करें? कोस स्क्वायर की हेयर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर की हेयर, एंड एलसीएम ले लें, उसके बाद करें। तो क्या बन गया एलसीएम? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया इसमें? कोस क्यूब थीटा, और ये बन गया साइन क्यूब थीटा। तो बी साइन क्यूब थीटा बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कोस माइनस ए कोस क्यूब थीटा, ये बन गया। दिस डेरिवेटिव सो से जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा मिनिमा। ओके, ये मेथड है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से जीरो। ओके, अब जब ये जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ चला गया, ये मल्टीप्लाई में चला गया, जीरो हो गया। देन क्या बन गया? बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कोस क्यूब थीटा, बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये दिस इंटू जीरो, देन जीरो। दिस इंप्लाइज, अब ये माइनस की टर्म उधर पॉजिटिव हो जाएगी जाकर, तो बी साइन क्यूब थीटा, बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। ओके, देन दिस इंप्लाइज बी अपॉन ए साइन क्यू, ये डिवाइड में ले आए इधर, तो बी अपॉन ए टेन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ गया, उधर मल्टीप्लाई में क्या, इंटू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देन टेन क्यूब थीटा वैल्यू इज इक्वल टू, ए मल्टीप्लाई में जाएगा, बी डिवाइड में जाएगा, तो ए इंटू वन, ए अपॉन बी, ये टेन क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, तो इसका मतलब अगर टेन थीटा की वैल्यू देखते हो तो कितनी बनती है, और वी कैन से क्यूब रूट यानी पावर 1/3। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या बनती है, ए पावर 1/3 क्यूब रूट डिवाइड बाय बी पावर 1/3। This is the value of tan theta. Okay. Now double derivative you have to solve. तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पर शो कर दें। डबल डेरिवेटिव एक बार शो करना जरूरी है, क्योंकि हमें मिनिमम दिखाना है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव दिखानी है। अब देखिए ए एंड बी यानी रियल नंबर है,
ओके, डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, डिस्टेंसेज है पॉजिटिव है, ए एंड बी आर पॉजिटिव, क्यूब रूट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा कोस थीटा भी फर्स्ट में होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे, तो ऑल आर इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जी ये वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, तो नाउ व्हाट इज अवर क्वेश्चन, दैट के डबल डेरिवेटिव वी हैव टू डू हियर बिफोर पुटिंग जीरो हियर। हमने ये जीरो पुट किया था, यहां पर पुट किया था, ये जीरो की साइड में चला गया, इसलिए इसको रहना है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहां डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे हम तो क्या होगा, डेरिवेटिव वही सेम थिंग, इसका डेरिवेटिव cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का, एंड इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव u अपॉन v से होगा, एंड डेरिवेटिव जो भी बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। तो आप कहेंगे ये डिफरेंशिएट करके ये भी पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, greater than 0 because tan theta comma sin theta comma cos theta all are positive, all are positive। इनका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव बनेगा। सो मिनिमम, so h will be minimum, h will be minimum, h will be minimum at h will be minimum at h minimum at tan theta is equal to a power 1 upon 3 divided by b power 1 upon 3। अब ध्यान देंगे क्या करना हमें, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास है ये पॉइंट, ठीक, तो हमें ये सॉल्व करना है, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो a इंटू कोसेक थीटा लेना है, a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया एट दिस। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं a अपॉन साइन थीटा की वैल्यू। अब ध्यान देंगे, एक राइट ट्रायंगल बना लूंगा इसके लिए, किसके लिए, tan थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं, रफ लेट दिस इज थीटा, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट साइड a पावर 1 अपॉन 3 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट b अपॉन b पावर 1 अपॉन 3, ये हो गई। तो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, ओके, तो हाइपोटेन्यूज विल कम स्क्वायर रूट ऑफ दिस a पावर 2 अपॉन 3 स्क्वायर ऑफ पावर टू पावर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टू साइड स्क्वायर, other two side square, hypotenuse square and then square root b power 2 by 3। Understand this is happened. Now from here find sin theta, so this implies sin theta and cos theta find कर लो यहां से इस ट्रायंगल से,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट विल बी देयर साइन थीटा opposite upon hypotenuse a power 1/3 opposite side अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? ये पावर इसकी कितनी है? रूट मीन्स 1/2। और पावर क्या क्या है ये हमारा? a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। ये हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, डन। cos थीटा, cos थीटा इक्वल, इस ट्रायंगल से cos थीटा इक्वल एडजेसेंट साइड b पावर 1/3 डिवाइड बाय hypotenuse। hypotenuse means a power 2/3 plus b power 2/3 hypotenuse is power 1/2 बिकॉज रूट है इसका। ये बन गया। तो ये दोनों वैल्यू साइन थीटा एंड cos थीटा यूज हियर, use values sin theta. Sin theta means a power 1/3 into a power 2/3 plus b power 2/3 whole power 1/2. This is sin theta. Okay, again sin theta, this upon this, तो ये ऊपर चला जाएगा, this upon this, चलो अगली लाइन में ऊपर ले जाएंगे। और ये क्या है? a पावर ए अपॉन दिस, ठीक हो गया, प्लस बी अपॉन सेम थिंग, क्या? b अपॉन cos थीटा वैल्यू b पावर 1/3 डिवाइड बाय दिस सेम a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 whole power 1/2. This, okay? This. Now simplify this. So hypotenuse means minimum hypotenuse, minimum AC will be equal, add both। अब ऐड में ध्यान देंगे, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। एल्शियम a पावर 1/3 b पावर 1/3, ओके, अंडरस्टैंड। a डिवाइड बाय दिस यानी a मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस, तो a के साथ ऐसे लिख लो एक बार, a अपॉन a पावर 1/3 एंड ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 1/2। this understand this, plus b upon
b पावर 1/3 इंटू a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 1/2. Simplify this. Now this common here a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, यहां भी फैक्टर है यहां भी फैक्टर है तो कॉमन आ जाएगा और ये इसके साथ सोल्व हो जाएगा। तो ये कॉमन ले लो, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 1/2 is common factor. Then what left? Here a upon a power 1/3, तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/3। a पावर 1 है माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3. So this a power 2/3 will left here plus here this common, तो b upon b पावर 1/3, तो 1/3 ऊपर जाएगा तो b पावर 1 माइनस 1/3, तो b पावर 2/3 this left here. Okay, now same base, here power half here power 1, तो मल्टीप्लाई हो गई दोनों की, सेम बेस। ओके, तो पावर ऐड x पावर 3 इंटू x पावर 2, तो x पावर 3 प्लस 2, तो दिस एंड दिस सेम, तो दिस सेम a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 एंड होल पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 1.5, 3/2 hence proved. This is your hypotenuse AC. So hence proved. Hence proved. ये हमें प्रूव करना था. Done. Okay. Now, like this question, many questions are there. Like, share and subscribe. Similarly, same type question. Okay. Share the video to the maximum contact. Like, share and watch the video. And if not subscribe, please subscribe the channel. Okay. Now, मेरी इच्छा है कि उन बच्चों को जरूर वीडियो भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे थे, जिनका अपना सेल्फ स्टडी है, वो रिवीजन में अच्छे क्वेश्चंस को एक बार करेंगे वीडियो से तो उनको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अबव 90 वो आराम से ला सकते हैं। ओके, तो उन बच्चों को भेजें, उन फ्रेंड्स को भेजें, उन पेरेंट्स को भेजें जिनके बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उनको जरूर शेयर करें और बाकी सभी पेरेंट्स को करें जिनके बच्चे 10th 11th 12th, बिकॉज 11th की वीडियो देखना चाहता है कोई, 10th की देखना चाहते हैं, तो 10th का फुल सिलेबस एक लिंक में मिलेगा, 10th क्लास का एक लिंक होगा एंड सारी वीडियो 11th के लिए एक 11th का लिंक होगा एंड 12th का ये है ही है, इसका लिंक आपके साथ है। तो उनको ये गाइड करना है कि लिंक जिस क्लास का भी खोलना है उसको पहले सब्सक्राइब कर ले अपने डिवाइस से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, तभी वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुल पाएगा। उन्हें अच्छी तरह ये गाइड कर देना
जो जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर द वीडियो टू दैट स्टूडेंट हु आर नॉट गोइंग टू द ट्यूशन। ये मेरी डिजायर है, ओके, मेरी इच्छा है, ठीक है। और उनको गाइड करना कि अपने फ्रेंड को आगे भेजें, और सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब, एंड write the comment in comment box. Thank you.